today's speaker of the day, Mr. Vibhushan Das sir. He is a very renowned wealth management advisor. He is a financial entrepreneur. He is running one of the best company of Odisha financial company named as Lotus Meat Wealth Management Limited. He has been awarded as most influential leader in 2023 and 24. He has given say to a lot of students. In fact, when he first time recruited our student in 2015-17 batch, his name was Mr. Siddharth Sen. Now he is doing very good in financial field. Now he has become one of the very good financial entrepreneur. He is in office in Bhubaneswar. Today sir is with us, and in the first half he will do some wealth management talk. He will suggest you, guide you, and also he will tell you in how many ways you can be very helpful for this talk. And sir is also very good friend of childhood friend of our director sir. So I would request sir to please come and say a few words. Thank you, Professor Farid. Esteemed guest of this morning, Vibhuti Bhushan Das, and my dear students. Vibhuti is a very good friend of mine, starting from UP school to Capital High School to BJP College corridors. I've done a lot of mischief, lot of good things in our school and college career, and I'm very happy that now he's very accredited or accepted finance manager of the country. Recently, he has been awarded from Man of the Year for Economic Times. He will be receiving an award in Mumbai in 27. And we had a school get together. The day we have a school get together, I pick up somebody and invite to him. Once Ashok Panda had come, this time his turn was there. He was so busy, and fortunately, Delhi First Studies called her. His daughter is a doctor. She has come here for a written test for PG program. It was appealing exam. I told her, if you are coming, stay in my guest house and I met my students. These are the lighter part, but the most serious part, what I am trying to tell you, that he is also going to recruit some of you. Second half, you will have a introduction or interview kind of a thing. And you will be happy to know that in 2015, we had 100% placement, only one student was left. I am not telling his name, but and he was not rejected by, he was rejected by everybody. Whenever anybody is rejected, I came to the picture. I called to one of my friends, and I will tell another story right now. And he called us to Bhelde. What is them talking? So he went from Kotak. This guy was not bad, but was not very outspoken or was not fit to any corporate policy. And he was astonished to know now he is a man of crores. Sir, you just Vibhuti was telling the ex-sal usko training diya, job bhi diya. Abhi he is not with him, but after learning the techniques, he is now in a very big company and earning in lakhs. कहाँ का घूमता रहता है, पता है सिंगापुर को टीवी में देखता रहता हूँ इसमें. That is one part. Second part is, as you all know, the finance is the lifeblood of all the business, and you should be a very good manager unless cannot be a very good manager unless you know your decision how it is impacting the finance of the business. So I will not waste much of your time, and I will welcome Vibhuti. And I told you, for a PowerPoint, no, मेरे को PowerPoint नहीं चाहिए. PowerPoint में सिर्फ भाषण चलता है. He will be just interacting, finding out, and also he will give some techniques how to earn while learning. You can do also that, and a lot of things he will be enlightening you. And number two, the most important part is as much as you can interact with him. Thank you very much, and over to Farid sir. Thank you sir. Please stand. I will hand over this. What's it? Thank you. So let us start directly. And I am not going to talk something which you do not know. I am going to talk something which you know. There are two aspects of the
one major aspect in our life. One is health and second is wealth. Health का कंट्रोल हम कैसे करते हैं? From morning to till the time we are conscious and not going to sleep deeply to take care of our health. Why we do that? Sorry, health बोला ना. Why do we are doing all those things consciously? क्योंकि anything goes wrong, then I will get ill. It will be a problem for me permanently. I cannot discharge my duty. I'll get pain, all these things. But wealth is also having the same activity, but health is there. Without wealth, can anybody survive in this world? No. When we are talking about wealth, means we are talking about certain level of life. I am not talking about a person who is very poor. उनको कैसे wealthy करेंगे हम लोग जानने के बाद उनको भी करवा सकते हैं. तो for that we will be having a discussion right now, which is basically a wealth management in personal level. Okay? Anybody knows how wealth is being created? Wealth कैसे create होता है? How wealth is being created? By doing? No, वो तो मेरा सैलरी के लिए और बिजनेस इनकम के लिए मैं इनकम करता हूँ. बट इनकम से वेल्थ जनरेशन होता है. इनकम इज फॉर द लाइफ सर्वाइवल पर्पस. मैक्सिमम पीपल दे टू कंसीडर वेल्थ में मैंने नौकरी करने से जो सैलरी मिलता है मेरा वेल्थ हो गया. नो, मैं बिजनेस करने से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपका वेल्थ क्रिएट होता है. So we are here discuss. There are two aspects again. I am saying those who want to be there in the financial, personal finance, wealth management line, they can learn this thing. Other than this, those who will be going to a different life, for them also it will be highly required in your lifetime, throughout the life. Okay. So what we are discussing, I'm going to discuss here with wealth management. Being a wealth manager, you will be tomorrow, or anybody in this room will be tomorrow a wealth manager. What will be his major job? His job will be create wealth for the investors. That is the wealth manager's major job. Then now the question comes, how wealth is being created? कुछ इन्वेस्टमेंट करने से wealth create होता है. Very simple. उससे कुछ अलग चीजें कोई बोल सकता है? How wealth is being created? कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद wealth create होता है. Where from this investment comes? From saving. Means आपका business there are two kind of income, business income और non-business income. Means generally salary. ये दोनों से हम खर्चा करने के बाद जितना अमाउंट रहता है उसी को हम इन्वेस्टमेंट करके wealth create करते हैं. Okay. Now we will be going to. So any investment is the input first. This is the input, and the outcome is wealth. Suppose you have invested 1 lakh in the bank, or how much did you? Suppose 1 year. How much you are going to get after 1 year? कितना मिलेगा? Anybody can say? बैंक में 1 साल एफडी रखने के बाद 1 साल के बाद कितना परसेंट देता है इन जनरल? 6.5%, 7%. So after a year, how much you are going to get? 7,000. So you are wealthier by 7,000 rupees. Very clear. Okay, you are having 1 lakh now. After a year, you have become owner of 1,07,000 means 7,000 रुपीज और बढ़ गया. बट सचमुच में उतना अमाउंट के लिए आप वेल्दी हुए हैं क्यों? क्योंकि सर प्राइस ही बढ़ता है ना हर चीज का. वो क्या बोलते हैं उसको? इन्फ्लेशन. और क्या है? ये 7,000 रुपया सचमुच नहीं ग्रोथ हुआ है, उससे कम ग्रोथ हुआ है. What are the factors that 7,000 is not exactly your wealth? One is inflation, another is tax. अगर किसका टैक्स नहीं है तो 0 है तो 0 है. So in this case, when 7,000 rupees में सालों में इन्फ्लेशन अभी कितना होता है? इंडिया में अभी इन्फ्लेशन कितना है? फर्स्ट CPI around 6%. Okay, 5 point something but 6% पकड़ो. तो 1 साल के बाद 6% भी कट गया, माइनस हो गया. तो एक्चुअल गेन इज 1,000.
ओके, और उसके ऊपर अगर टैक्स किसका डाल दोगे वो भी कम रहेगा। देन दिस इज एप्लीकेबल फॉर माय कंट्री और अदर कंट्री आल्सो। दिस इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री में थोड़ा इन्फ्लेशन कम होता है, कोई कंट्री में थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। What is the recent scenario you have seen in USA, which is the most developed country, going through the inflation of 9-10%, which never we have heard in our life within 30 years. So a country which Japan doesn't have any inflation, उधर लोगों को पैसा बैंक में रखने से इंटरेस्ट बैंक को पैसा देना पड़ता है। Here you are getting interest. If you put money in bank in Japan, you have to pay banker कि आप मेरा पैसा रखो। तो in that case, inflation and tax is the major enemy of your wealth creation. इसी को जो कंट्रोल करेगा, then only he or she will can create wealth. This concept is very clear. What is the concept? Again, investment, the output is return minus inflation is or minus tax is equal to wealth. A proper wealth is investment, then return is your return minus inflation is equal to wealth. I am not factoring any tax right now because that is altogether different matter. तो wealth का concept ये जो है, it is pure for every person of the world. This is the rule. Other than this, there is no other rule. अगर कोई किसी के पास है तो आप मेरे को बाद में बोल देना। Now जो wealth create होता है उसके लिए wealth manager का उनका अपना रोल होता है। Wealth कैसे create होता है? Again, wealth can be created in two ways. One is through real estate. Another will be simply non-real estate. Okay. What is real estate? Property. Property can mean which condition, कौन सा कंडीशन में प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं? मैं बोल देता हूँ लैंड, बिल्डिंग और ये तीनों को छोड़ के आप कोई भी हिसाब से डिवाइड करना चाहोगे रियल एस्टेट को नहीं हो सकता है। आइदर ऑफ दिस थ्री कैटेगरी में आएगा। आइदर यू आर हैविंग लैंड और यू आर हैविंग बिल्डिंग और यू आर हैविंग ए फ्लैट। ये आदमी जो रियल एस्टेट उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये किसी नहीं करते हैं। What are the measures? To have the own shelter and another is for the rental purpose to get some income. ये दोनों चीज के लिए करते हैं ना, खुद को रहने के लिए करते हैं for the retail purpose when you reside in those entity, either of these three entity, or if you give it on rent, this is in for the commercial to get income. ये जो चीज अब तो नहीं की है, आपका फादर मदर जो भी गार्डियन किए हैं रियल एस्टेट में, वो इसलिए किए हैं। ये दोनों चीज के लिए ही किए हैं, खुद को रहने के लिए किए और कुछ रेंटल इनकम मिलने के लिए किए। एंड हाउ ए पर्सन गोइंग टू हैव दिस रेंट बिल्डिंग एंड प्लान, ये किसी का ऊपर डिपेंड करता है। मैं किधर नौकरी करता हूँ, मेरा सोशल स्टेटस क्या है, मेरा बच्चा लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है। मैं इधर बैठ के तो सिंगापुर में फ्लैट नहीं परचेज करूंगा, बट इधर बैठ के बैंगलोर में परचेज कर सकता हूँ अगर मेरा बच्चा जाके बैंगलोर में सेटल हो गया, हो सकता है। अदरवाइज आई इफ आई बिलोंग टू भुवनेश्वर, आई ट्राई टू हैव ए फ्लैट लैंड बिल्डिंग इन Bhubaneswar. If somebody is from Raulkela, he will put there. If somebody is from Patna, then they will be trying to. So these property, this wealth is being created on the basis of certain requirement of the people, which is on the basis of their social status, income, salary status. किधर काम करते हैं उसी का पर्सन डिपेंड करता है. Whether we will discuss about this thing to create a real estate or wealth. Do you need to give any advice to somebody? In general, no. घर का आदमी घर का आदमी को कर सकता है, बट मैं आपको नहीं कर सकता हूँ। जाके देखो ना, जमाइका में बढ़िया प्लाट मिलता है, मैं तो ये भी लाती, ये क्या बात मेरे को कर। So this is on the basis of person's own status, किधर काम करता है उसी का पर, सोसाइटी कौन सा सोसाइटी में रहता है उसी का पर सब डिपेंड करता है। So these are the area where a wealth manager doesn't play a bigger role. बड़ा रोल प्ले करता है कि कोई, आप खुद ही सोचो कि आपको वेल्थ मैनेजर है,
किसका प्रॉपर्टी किधर बाय करोगे सेल करोगे उसके लिए आप ज्यादा आपका एक्टिविटी नहीं रहेगा, वो जो भी करेगा खुद ही इन्वेस्टर और जो भी कस्टमर खुद ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा उसके लिए। हाँ थोड़ा बहुत किसका एडवाइस लेंगे और द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ सम फाइनेंशियल गेन। सो दिस इज नॉट द एरिया वेयर वी विल बी डिस्कसिंग मच अबाउट द वेल्थ मैनेजमेंट राइट नाउ। सो दिस इज द नाउ नॉन रियल एस्टेट। नॉन रियल एस्टेट बोलने से क्या है? ओके क्या करते हैं? अच्छा, नॉन रियल एस्टेट मीन्स फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, this is the area where we are going to discuss for another half an hour, and by the time we will have a lot of things to understand. Okay, अभी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलने से क्या होता है? फर्स्ट क्या क्या कैटेगरी में आता है? उससे पहले आप बोलो क्या क्या फिनेंशियल एसेट्स हो सकता है? अब कौन बोले? बॉन्ड कौन बोला? बॉन्ड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड। Somebody has told government securities also. Huh? This is equal to bond. Huh? Any other thing? Stocks तो बोल दिए, शेयर तो बोले ना, शेयर स्टॉक बोलता है, कोई इक्विटी बोलता है, कोई शेयर बोलता है, तीनों एक ही बात। लंदन में उसको शेयर्स बोलते हैं, इधर हम इक्विटी बोलते हैं, कोई अमेरिकन स्टॉक्स बोलते हैं, पर तीनों वर्ड समान है। तो और क्या है? ट्रेजरी बिल्स। हाँ? ट्रेजरी बिल्स। Treasury bills also this category. 25 करूँगा उसको क्यों एक ही कैटेगरी में डाला? Any other things? अपना घर में जो सारी इंस्ट्रूमेंट है, पापा मम्मी और घर का कोई ब्रदर सिस्टर अंकल कोई भी किए होंगे उसी को याद करके बोलो, because you don't have investment, अगर कोई किया तो बहुत बढ़िया है। कोई कैटेगरी में Any other thing? Somebody has done LIC. LIC नहीं, insurance, life insurance. Any other thing? Probably we have covered most of the things. Okay, most of the things we have covered, and we are going to discuss about all those things. These are the major things which we do know about the investment is concerned. उसको छोड़ के कुछ भी चीज नहीं है, आप लोग जितना बोले उतना ही है, और बाकी कुछ है छोटा मोटा वो अपना अभी जरूरत नहीं है। तो नाउ स्टार्ट विद द थिंग्स। एनीबॉडी गेट्स इनकम व्हेन ही पुट्स द मनी। इनकम मैंने बोला दो किस्म का हो सकता है, हर टाइम याद रखो, बिजनेस इनकम हो सकता है और सैलरी इनकम हो सकता है। वो दोनों को छोड़ के कोई इनकम होता है कि दुनिया में? चोरी का इनकम का कैलकुलेशन नहीं करना है, तो डेफिनेशन नहीं दे सकता। तो बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम, ओके, ये दोनों इनकम होने के बाद जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है ये सारी इंस्ट्रूमेंट में करता है। इनिशियली व्हेन यू गेट योर मनी व्हेन इट गोस बैंक। सो बैंक में जो डिपॉजिट होता है कौन सा कैटेगरी होता है? फिक्स्ड है और रिकरिंग आरडी होता है और करंट अकाउंट होते हैं, करंट और सेविंग्स। बेसिकली करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेस ऑपरेशन, सेविंग्स इज मेरे पास छोटा मोटा पैसा है बैंक में डालने के लिए, वो these are not investment, just you keep the money for the transition purpose. So these are not two important elements as far as investment is concerned. These two are important elements. मेरे पास आज महीना में एवरी मंथ 5,000 रुपया बचता है, मैं बच्चों लोगों के लिए और खुद के लिए 5,000 रुपया करके आरडी किया एवरी मंथ। After 2 years or 3 years, that money 60,000, 1,20,000 with interest it comes to 1,50,000. I use it for some purposes. That is why people do RD. जिसको महीना में कुछ फ्यूचर इनकम को लॉक करना है, जिसके पास कुछ पैसा आ गया है वो क्या करेगा? वो आरडी करेगा? नहीं करेगा, उसको एफडी में डालेगा। So there are basically two kind of income. What these two income understandings गिविंग द मेजर, उसका थॉट प्रोसेस क्या है? ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका करने के टाइम आपका मन में क्या आता है? वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट आई एम पुटिंग द क्वेश्चन। आफ्टर रिटायरमेंट
नो दैट इज योर गोल। वो जो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आपको मन में दो चीज है, मैं इतना पैसा डिपॉजिट करूंगा, इतना दिन के लिए करूंगा, इतना परसेंटेज मिलेगा, इतना दिन का मेरे बाद में कुछ कर। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। हाँ, 1 लाख रुपया रखा 6% में 2 साल में 12,000 मिला, मेरे को 2 साल के बाद 1,12,000 मिला। इट मीन्स I do understand what is the return. I do know what is the tenure of the investment. Also, I do know what kind of tax implication of that investment is. In general, these are the income where the tax is applicable for the any income. Okay, कुछ गवर्नमेंट का up to 50,000 नहीं होगा, 10,000 नहीं होगा, वो बात अलग है. But these are taxable. What are the another this type of product? पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आप सुने होंगे, हाँ, ये इसमें होता है एनएससी, आरडी, पोस्ट ऑफिस आरडी, पोस्ट ऑफिस मंथली, ये सारी होता है। ये जस्ट लाइक अ बैंक, बट व्हाई पीपल डू इन्वेस्ट देयर? उसमें से बैंक से छोटा मोटा अधिक मिलता है। और सेकंड, उसमें क्या है? नो टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। एनएससी में पार्टली होता है, बट नॉट ऑल द केसेस। वो थोड़ा 1-2% तो अधिक मिलता है। और किस लिए? This also secured issued by Government of India. Post office is almost all Government of India. तो बैंक का जैसे आपको बेनिफिट मिलता है, बैंक बोलने से थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, इसी का ऊपर होता है। This also having same, you know the time period of the investment, rate of interest, and the taxability of that income. Almost all same, दोनों का, almost all पूरा same. And the third type of income, bonds. Bonds किसका कौन यूज करता है? गवर्नमेंट करता है। उसको अगर शॉर्टर टर्म होगा तो वो ट्रेजरी बिल करते हैं, बोलते हैं। स्लाइटली लंगर पीरियड होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है, आप बॉन्ड में जाकर पढ़ लो, बहुत सारी चीज गूगल में मिल जाएगा, कोई भी किताबें मिल जाएगा। तो ये बॉन्ड बेसिकली इशू करता है गवर्नमेंट। पीएसयू इज ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें के 51% किसका होल्डिंग रहता है? गवर्नमेंट। और कौन यूज करता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कौन है? एलएनडी, नाल्को इस पीएसयू छोड़ दो, आईटीसी, रिलायंस, ये सारी का जो टेम्पररी पैसा जरूरत होता है ना, ये मार्केट से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड इशू करते हैं। दैट इज ऑल्सो सेम, आई विल पे यू आफ्टर certain period at the rate of this much where the amount is going to be taxable, ऐसे डिक्लेयर करके देता है। सो दैट इज वन टाइप ऑफ। और कुछ उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट बाय एनबीएफसी। ये सारी को मैंने एक ही लाइन में रखा, इसलिए ये सारी इन्वेस्टमेंट का आपको मालूम है कितना % रिटर्न मिलेगा, कितना अवधि के लिए, ड्यूरेशन क्या है, और एंड ऑफ द 3 years 4 years 5 years के बाद मेरे को कितना मिलेगा, और 1 year बोनस। और ऑल दिस, सो रिटर्न इज नोन, मैच्योरिटी आल्सो नोन, कितना देर के बाद मैच्योर होगा, एंड इनकम इज टैक्सेबल। कोई उसका इश्यूअर डिफर करता है। इश्यूअर कौन? बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, ये सारी हो सकता है। बट द मेथोडोलॉजी फॉर दिस कैलकुलेशन ऑफ वेल्थ इज सेट, दैट वी आई केप्ट ऑल द थिंग्स इनटू वन लाइन। बट द सेकंड वन आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस थिंग लेटर ऑन। बट द सेकंड वन, ये तो खत्म हो गया, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब चीज। नाउ शेयर समझाएंगे जरूर। उसके बाद एक हर घर में होता है बोर्ड में लोग इन्वेस्टमेंट किए करते हैं। अप्रिशिएबल एसेट। और क्या है? ये अपना एक सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है, रिचुअल के साथ कनेक्टेड है। घर में बोलते हैं कि घर में गोल्ड लेता जो बोलते हैं आपके लिए शुभ है, और बहुत सारी चीज रिचुअली अटैच्ड है। बट नाउ डेज आर यू दिस मच ऑफ इंटरेस्टेड एज अर्लियर people were interested for gold? No. Why? There are 2 reasons behind this thing. Gold में, तो इसलिए हम तो गोल्ड को 2 बार कर सकते हैं, एक फिजिकल कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। Means you can have your gold in both the method, either in physical or electronics. Now physical के लिए हमको प्रॉब्लम क्या है, भला क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। फिजिकल में जो भी है कुछ सब खराब है, क्योंकि एक बार
स्टोलन हो गया, जीरो हो गया। और क्या है उसके डिमेरिट्स क्या है? फिजिकल गोल्ड का फिर डिमेरिट्स बोलिए और क्या हो सकता है? चोरी हो जाएगी, चोरी, स्टोलन तो बोलिए खराब हो जाएगी, और क्या? रिस्क में उससे स्टोलन इज एसोसिएटेड विद अनदर, उसका प्योरिटी पता नहीं चलता। कोई भी जगह पे जाकर परचेज करो, प्योरिटी आ चुकी है, परचेज क्या है उसका मैंने पता नहीं चलता। और क्या है? गोल्ड जाके परचेज करो, क्या मेकिंग डिमेकिंग चार्जेस लगा था कुछ पता नहीं चलता है। सो मेकिंग डिमेकिंग चार्जेस। और क्या है? ऑब्सोलेंस। मैंने जो गोल्ड परचेज करके रखा है लड़की के लिए और मैरिज का टाइम बोला तो चलेगा नहीं पापा, और मेरे को चेंज करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर होगा। ऑब्सोलेंस उसको बोलते हैं। देन आल्सो यू हैव टू कीप स्टोरेज चार्जेस। बैग में किधर लाखों पकड़ रखे तो उसके लिए भी छोटा मोटा चार्जेस। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच किल ऑलमोस्ट ऑल 40%, 30 to 40% ऑफ योर टोटल वैल्यू। 1 लाख का परचेज किया है तो कल 20-40 हजार चला रहेगा। जो परचेज किया है पापा मम्मी को पूछने से वो बोल पाएंगे, हम लोग नहीं उसको मीन्स आप लोग महसूस नहीं किए, हम बोलते नहीं जान पाओगे, बट इट इज अ हैवी फिजिकल गोल्ड इज हैविंग मेजर प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड इज आल्सो अवेलेबल। बट इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे तो गोल्ड तो कोई भी हिसाब से परचेज करना पड़ेगा। वेदर माय डॉटर विल बाय मींस वेयर दिस ऑर्नामेंट्स और नॉट, बट आई हैव टू कीप मनी at the time of the marriage. I have to give because this is my social status, this is requirement by the society, all the blah blah जो सारी ऐड करो, ये सारी रीजन के लिए मेरे को गोल्ड परचेज करना पड़ेगा। तो गोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक पर्पज में अगर परचेज करो, मैंने तो 10,000 रुपया करके सपोज करो, 10,000 डिवाइडेड बाई आज का रेट 72,000, कितना यूनिट मिलेगा? और यूनिट फॉर्म में रहेगा। यूनिट फॉर्म में एवरी मंथ ऐसे जमाते 5 साल के बाद वो हो गया 200 यूनिट। उसी टाइम गोल्ड का रेट हो गया 1 लाख, 200 यूनिट में 1 लाख हो गया 20 लाख। 20 लाख का मैंने गोल्ड परचेज करके दे दिया, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एवर रिक्वायरमेंट बाय द रिक्विजिट पीपल। तो गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक का इन्वेस्टमेंट करना सही है गलत है? अगर गोल्ड लेना है सही है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू फेस। दैट डजंट मीन दैट ये बोलने से लोग खाली गोल्ड खाली इलेक्ट्रॉनिक में बाय करेंगे, फिजिकल नहीं करेंगे, फिजिकल भी बाय करेंगे। बट since we are improving and having a better society and social life, we understand what is the difference between physical gold and electronic gold. That we need to understand. Then only we will take action in future, or we will be advising our own family members कि ऐसे मत जाओ, ऐसे जाओ. Okay? What is the 30? तो गोल्ड का हो गया। म्यूचुअल फंड लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट म्यूचुअल फंड जाएंगे। अभी शेयर का बरी में जाएंगे, उससे पहले और एक चीज है लाइफ इंश्योरेंस। कोई किसी पे घर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया आ गया इंश्योरेंस में। भाई इंश्योरेंस इज नॉट एट ऑल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये लोग तो इंश्योरेंस क्या होता है? इसे रिस्क मैनेजमेंट टूल। रिस्क मैनेजमेंट टूल मींस समझ में आता है क्या हुआ? क्या कॉमन पीपल यू मस्ट बी ऑल नोइंग व्हाट इज इंश्योरेंस। कुछ चीज हैपनिंग हो जाने से वो इंडेमनिफाई करेगा। सपोज ए इज हैविंग इनकम ऑफ 10 लाख पर ईयर, उसका अगर डेथ हो जाता है, वो प्रॉपर्ली लाइफ इंश्योरेंस किया है, अगर 2 करोड़ किया है, 1 करोड़ किया है, उसको मिल जाएगा। तो फैमिली को जो फाइनेंशियल रिस्क होगा उस तरफ से वो छुटकारा मिलेगा। बट इज इट हैपनिंग टू ऑल द पीपल? नो। मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि कहाँ पैसा बचता है, मेरे को इंश्योरेंस करना है। पैसा बचता है बट फिर भी करते नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं मरूं तो नहीं मिलेगा, ये सोच के भी नहीं करते। बट दिस इज इंश्योरेंस का टर्म बहुत बड़ा है, इसको पढ़ो और अच्छा से पढ़ो। इससे रिस्क मैनेजमेंट टूल सो है। ये जो रिस्क मैनेजमेंट टूल है उसमें लाइफ एंड हेल्थ दोनों होता है। मेरा पास सपोज कोई इन्वेस्टर आता है, उनका पास अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर्ली नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर्ली नहीं है, तो वो दोनों पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ कि पैसा इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि एनीथिंग तुम्हें टुडे यू हैव इन्वेस्टेड सपोज 2 लाख 50,000, 4 लाख 10 लाख हो सकता है, 2 करोड़ भी किया, उनका अगर डेथ हो गया और एक्सीडेंट होके खर्चा हो गया हॉस्पिटलाइजेशन, कहाँ से लेंगे? वो इन्वेस्टमेंट से कटेगा ना। आई डोंट गो फॉर दिस इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ और लाइफ, एनीथिंग हैपेंस बैडली देन ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। सो अगर वो नहीं किए हैं इट्स अ मिस्टेक। बट आप अगेन क्वेश्चन करें क्यों नहीं लोग करते हैं? कौन बोल सकता है? थोड़ा डीप में जाएंगे। क्योंकि बस होने के बाद भी पैसा है।
टाइम के साथ वो पैसा बर्बाद हो जाता है ना सर, किसी ने बर्बाद तो लोग सोचते हैं, बट सचमुच होता है क्या? नहीं सर, अब तो छोटा अमाउंट देके ये पैसा उनका ऐसे भी खर्चा कोई भी हिसाब से हो जाता है। इस एंडेमिक का तो रिस्क ना, रिस्क कुछ हो जाने से उसको समाधान करता है ना ये आराम से, पर लोग क्यों नहीं करते हैं? दैट इज वन ऑफ द रीजन लोग बोलते हैं इन माय कंट्री दैट नॉलेज हैज नॉट बीन गिवन टू द पीपल राइट नाउ। कोविड का बाद आप देखोगे मैक्सिमम लोग नहीं किया है तो चरित्र की तरफ करो, हॉस्पिटल हो जाएगा 2-4 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। एंड अदर देन दैट आल्सो द मेजर थिंग द लोगों का पेइंग कैपेसिटी कम था। अभी जो मोदी गवर्नमेंट आने का सबसे बड़ा इंश्योरेंस का एक बेनिफिट कमल लोगों को मिला था। लोगों आपको मालूम है वो क्या है? हर कोई आदमी के लिए ना टैक्स बेनिफिट तो पहले मिला 1 लाख लोग गरीब जनता के लिए जो मजदूर है, तुम सालों में 200 रुपया 100 रुपया दोगे 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। इन केस एनीथिंग हैपेंस टू दैट बोथ इन लाइफ ऑल्सो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज का बहुत सारी आयुष्मान भारत योजना वाला ब्ला ब्ला सब वो है, बट देयर आर सर्टेन पीपल फॉर होम इट इज नॉट एप्लीकेबल। मेरे लिए है क्या? मैं कालिया वालिया कुछ ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। मेरे को मिलेगा क्या? बिकॉज माई इनकम डजंट प्रोवाइड दैट स्कोप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम। तो मेरे को खुद को जाना पड़ेगा। सपोज मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो जो सपोज अपोलो हॉस्पिटल में 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, कुछ हो गया एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सीडेंटल कुछ इंजरी हो गया, तो ये सारी करने से हेल्थ इंश्योरेंस करने से वो पैसा का 80% आपको मिल जाएगा। 20-25% गाड़ी का इंश्योरेंस आप करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उसके लिए नहीं करने से पुलिस पकड़ेगी। खुद के लिए नहीं करोगे कोई पकड़ेगा नहीं, और गाड़ी के लिए नहीं करोगे तो गाड़ी को पुलिस पकड़ेगा, फाइन कर देगा। आपको काफी हैरान होना पड़ेगा। देखो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मेरा एक दोस्त का, मैंने 6 साल का पहले का बात कर रहा हूँ, मेरे को बोला कि यार 10 मिनट हाँ, तो मेरे को अर्ली मॉर्निंग फोन करके बोले ब्यूटी प्लीज कम डाउन टू माय हाउस, आई एम रिक्वायर योर हेल्प बाय एनीवेज। मैंने बोला कि ठीक है, आदमी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला है, बहुत पैसा वाला है। बोला ये कुछ बोल रहा है, मैं फोन में पूछ रहा हूँ कुछ नहीं, मतलब बोल रहा है तुम आ जाओ, मेरे को हैदराबाद जाना है। तो मैं जाकर उनका घर में पहुंचा, उनको नेक्स्ट डे जाने का था, बट बोला आज ही आना। तो आई वेंट देयर, तो इन दैट केस जाके पहुंचा, बोले कि नहीं माय वाइफ का ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आई एम गोइंग फॉर ट्रीटमेंट, आई हैव टू गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने बोला कि वो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेक्टेड है। अगर डिटेक्टेड नहीं हुआ होगा देन आई वुड हैव गॉन फॉर दैट। मेडिकल इंश्योरेंस आल्सो स्पीक्स अबाउट दैट, बट जो भी है बोला कर दो भी। तो मैंने कोई हिसाब से करवा दिया। मैंने बोला कि बट जब भी क्लेम करोगे फ्यूचर में वो ये होगा, मीन्स वो रेपुटेट हो जाएगा, नहीं क्लेम सेटल नहीं करेंगे। चलो कोई भी सर बोला चलो रिस्क लेंगे, दोनों का नाम पे कर देंगे। मेरा वाइफ का अगर रिस्क नहीं होगा तो मेरा तो कुछ होगा, तो मेरा नहीं होगा, दोनों का मैंने करवा दिया। बट विद द डिस्क्लेमर, दो इट इज रॉन्ग फ्रॉम माय पार्ट, बट मैंने करवाया। तो 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद उनका डेथ हुआ, वाइफ का क्लेम डिजाला एंड ब्ला ब्ला जो भी हुआ। बट देखो और उसको पहले, बट मैंने व्हाट ही हैज टोल्ड मी, मैं BMW कार के लिए 65,000 रुपया पर मंथ पर ईयर दे रहा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं किया था। एंड तुमने मेरे को 1 साल पहले बोला था, बट आई टुक इट वेरी इजी। सो दैट इज व्हाट द रियलिटी ऑफ द थिंग इज कंसर्न। पीपल आर सेइंग देयर मैंने इतना प्रीमियम पेमेंट किया, कुछ मिला नहीं। अरे मिलने के लिए तुम नहीं किए, तुम रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए किए। सो दिस इज नॉट वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ इरोजन को कंट्रोल करने के लिए आपने की। वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड। और सेकंड, हम लोगों का पेइंग कैपेसिटी नहीं था। अभी सालों में देखो हर किसी का पास थोड़ा पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। कोई भी क्लास का आदमी पढ़ो, अब आज का दिन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज अपना कंट्री में क्या है? माय कंट्री हैज ग्रोन अप टू, और फिफ्थ जो बना किसने बना? एवरेज इनकम ऑफ द पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग मजदूर का बात नहीं कर रहा हूं, उनका भी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, बड़ा है। पहले अगर महीना में 5,000 रुपया कमा रहा था, अभी 10,000 रुपया हुआ है। वो चाहे हाँ बोले नहीं बोले, हमको उसमें सुनने का नहीं है। बट देयर इज अ चेंज इन द इनकम स्टाइल ऑफ द पीपल। सो व्हेन देयर इज अ चेंज, देन योर लाइफस्टाइल इज आल्सो गोइंग टू बी चेंज। आप अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाके गिर जाओगे, आपका बच्चा लोग छोड़ देंगे क्या?
कोई भी साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपने ये नहीं किया है तो अपना उनका पैसा जाएगा और अपना पैसा जाएगा। सो दैट इज व्हाई पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। सो तीनों का चीज आपने समझ लिया। दीज आर द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल इन दिस कंट्री बाय एनी मींस। पहले क्या बोला, दीज आर द थिंग्स इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं ना उसका दिमाग यूज नहीं करना पड़ता है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्या टैक्स है, मेरे को कितना दिन के लिए ये करना पड़ता है, और ये थोड़ा सेफ होता है। और जो भी है मेरे को 6% मिलना है और बहुत शांति है, ओके। और उसका बारे में गोल्ड का बारे में तब बोल दिया, फिजिकल रखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स रखोगे, नहीं रखोगे, हाँ फिजिकल रखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स रखोगे और नहीं रखोगे, नहीं क्यों नहीं रखोगे, दैट इज $1 million क्वेश्चन यू हैव टू इन्वेंट। क्योंकि अगर हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, बेसिकली हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्फ्लेशन को बीट करना होगा। टैक्स वैक्स छोड़ो, टैक्स तो कोई भी हिसाब से तुमको देना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा, छोटा बच्चा को भी देना पड़ेगा अगर इनकम करेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए वो एसेट क्लास। गोल्ड इन्फ्लेशन को बहुत रेयर बीट करता है, मींस जस्ट बीट करता है। उसका हिस्ट्री आपका पास किसी का मैं मेल आईडी ले लूंगा और सुदीप सर को बोल दूंगा, तो आई बी सेंडिंग एंड यू कैन गेट अ प्रिंट आउट। बट आफ्टर 31 मार्च अभी जो मेरे पास रिकॉर्ड है ना, अभी देने के लिए मेरे पास भी है, दे दूंगा। बट वो इतना बड़ा चेंजेस हुआ है लास्ट 1 ईयर में इक्विटी मार्केट में, वो डेटा इनसफिशिएंट आपको हो जाएगा 31 मार्च का बाद में। वंस आई विल गेट 31 मार्च फिगर देन आई विल सेंड दिस। ओके, इंश्योरेंस के बारे में बोल दिया, ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है। घर में कोई भी अपना आदमी होगा इंश्योरेंस नहीं किया है, बोथ हेल्थ एंड लाइफ प्रेशराइज है, वेदर वो करेगा नहीं करेगा अलग बात है। खुद का पेरेंट्स को भी प्रेशराइज करो, क्यों, these are the requirement of the person. If you avoid, then you are always going with the risk. रिस्क को साथ जाना है, रिस्क को अवॉइड करना है, रिस्क को अवॉइड करना है। चलो ये तीनों पॉइंट को खत्म हो गया। और नाउ विल गो टू 4th, 5th and 6th point, which is more relevant for us to discuss. What is 4th one? 4th one क्या बोलेंगे? म्यूचुअल फंड लेंगे ना स्टॉक्स लेंगे? उसको स्टॉक्स को कोई बोलता है, कोई बोलता है उसको इक्विटी, कोई उसको बोलता है What is this equity or shares of stocks? What does it mean? owning a company. Suppose मेरा लोटस में 12 है, मैं आज 5 लाख का शेयर अपलोड किया मार्केट में, आप बाय किए, then you become a shareholder to the company. तो either you buy it from the market or through दो हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। कहाँ से बाय कर सकते हैं? कुछ को IPO के माध्यम से, इनिशियल पब्लिक ऑफर, another is मार्केट से, स्टॉक मार्केट जो बोलते हैं NSE में जाके परचेज कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे बैंक में आप जाने से KYC करते हैं, आपका ये ABCD देखता है, इसे भी आप करने के बाद आप हर कोई बाय कर सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? The highest ever asset class available in this country, in this world. Anybody who is the most millionaire or billionaire or the trillionaire, जो भी बोल सकता है, who are those people? किसका नाम आप जानते हैं? वारेन बफेट का नाम जानते हैं। अपना कंट्री में कौन है? अदानी, अंबानी, जो भी है, ओके। ये सारी जो हाईएस्ट वेल्दी पर्सन होता है, कहाँ से होते हैं? They hold the stocks of their company or other company. So this is the most powerful. Put in what is the IPO value of 10,000 Wipro? आप लगाइए, गूगल में सर्च कीजिए, 10,000 जो हुआ था 1979, what is the value today? No, don't speak to the public right now. Just सोचो 10,000 रुपया 40 साल पहले किया गया। What would have been the value of that 10,000 right now? 40 गुना होगा। 10 करोड़ every year, एक गुना करके बढ़ने से 40 गुना होना चाहिए। हालांकि ज्यादा हो जाता है, फिर भी 40 गुना बोल सकते हैं आराम से। 10,000 40 टाइम्स मीन्स कितना होना चाहिए? 40 लाख, 4 लाख बोलो, 40 लाख बोलो, 4 करोड़ बोलो, जो भी कुछ बोल सकते हैं। बट डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू टुडे? वो 10,000 रुपया 40 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है IPO में, विप्रो में, आज का वैल्यू कितना है आपको मालूम है? 700 crores. This is the strength of the equity.
नाउ अभी भी क्वेश्चन लोग कर सकते हैं, मैं इक्विटी में क्यों जाऊंगा, मैं बैंक में जाऊंगा, मेरा पैसा सर पे रहने दो ना, कौन मना करता है? आप बोलोगे मैं ट्रेन में साइकिल ये स्कूटर में जाऊंगा दिल्ली, सबसे सफेद रहेगा, प्लेन में जाने से क्रॉस हो जाने पे हो जाएगा, पर वो तुम जाके पहुंचने वो आदमी काम करके आ जाएगा प्लेन। यू टेक रिस्क, यू कैन मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क वी डू कैरी एवरी डे। कहाँ? घर में इधर बैठे। क्या रिस्क है बोलो? एनी रिस्क, हाईएस्ट एवर रीचेबल रिस्क क्या है? करंट है ना, हम यूज करते हैं उसको ना, नहीं तो रिस्क बोल के छोड़ देता है, टेक्निकली यूज करते हैं, बाय व्हिच यू नॉट गेटिंग एनी रिस्क, यू कैन अवॉइड द रिस्क। लोग करते हैं, यूज नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। तो जब रिस्क एसोसिएट होता है, रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। वेरी क्लियर? तो स्टॉक इज अब तो बोलोगे सर बढ़िया बात है, मैं भी अंबानी बन जाऊंगा, एवरीबडी कैन बी अदानी आल्सो, बट उसके लिए तीनों चीज अटेंड होना चाहिए, नॉलेज, टाइम एंड मनी। नॉलेज होगा, टाइम होगा, मनी नहीं होगा नहीं, टाइम होगा, मनी होगा, नॉलेज नहीं होगा होगा नहीं। आइदर ऑफ द थ्री पर्सन्स elements are not available, you cannot be. I am talking about Adani Ambani is not applicable here. They have the business and they have created money, but the person who holds the top. सपोज मैंने आपका घर में आप कोई रिलेटिव में देखे होंगे, कोई आदमी बहुत पैसा वाला बन गया क्योंकि बढ़िया स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करता है, और ये हैज इन्वेस्टेड वेरी कंसिस्टेंटली इन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड और लॉन्ग एक्सपीरियंस। म्यूचुअल फंड के लिए बाद में आता हूँ मैं इधर मेरे। तो ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है, उसके ऊपर पढ़ाई करने के बाद आप जितना पढ़ाई करेंगे उतना कम हो जाएगा। बट ये जो लोग ये नॉलेज टाइम मनी नहीं होने से लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर भी करते हैं, छोटा मोटा हाथ में डाल देते हैं। कौन सा हिसाब से डालते हैं? कुछ से सुन के, कुछ नॉलेज गेन करके, वही बोलते हैं मैं फंडामेंटल रिसर्च कर दिया, वही बोला मैं टेक्निकल रिसर्च कर दिया। उनको मालूम नहीं है फंडामेंटल टेक्निकल क्या है, बट थोड़ा छोटा मोटा रिसर्च सुन के कर लिया, उसमें से 70-80% लोग हिट विकेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो दिस इज द एरिया इज द बेस्ट एसेट क्लास होते हुए भी हमको अलाउ नहीं करता है सबको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर भी करता है तो हाइपोथेटिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट उसका बारे में और थोड़ा जानकारी करने के लिए आपको टाइम है, और आप लोगों के पास टाइम है अभी नॉट इन दिस सेशन, एंड आई विल गिव यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन बाय व्हिच यू, मैंने बोला कि बिगनिंग से कोई कैरियर करेगा तो उसको सुनो, ना ही कैरियर भी करेगा तो सुनो, बिकॉज यू आर इन द फाइनेंस फील्ड, somebody going to ask you tomorrow, you will not bluff somebody, you will say something which being a finance person you should say कि ना I know this much and this might be the reality of the things, okay? तो ये जो चीज है एक बड़ा asset class है, उसको अवॉइड कोई भी नहीं कर सकता आज का जमाना। आप लोग तो आगे टोटली नहीं करेंगे फ्यूचर में, किसी का क्या रिजल्ट होगा, क्या कौन सा पोजीशन पर होगा वो तो वक्त बताएगा, बट कोई भी उसको छोड़ेंगे नहीं, सब कोई करेंगे। एंड नॉलेज टाइम मनी कैसे बिल्ड कराओगे उसका बारे में बोलेंगे। नाउ द लास्ट एसेट क्लास इज म्यूचुअल। म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्टमेंट को इक्विटी बोलते हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच में मानता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, और जो बोला था ना बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ये सब बॉन्ड, इसको सारी डेट कैटेगरी में बोलते हैं, ओके? और कुछ होता है इक्विटी प्लस डेट, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कैटेगरी। सो म्यूचुअल फंड में जो लोग इक्विटी में नहीं जा सकता तो लाइफ में इक्विटी में नहीं जाएगा इक्विटी में somebody is asking somebody, हाथ उठाइए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, बट म्यूचुअल फंड में इक्विटी में जा सकता है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? हू नोस? गलत और सही आंसर मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज बोलो। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इसको मालूम है? म्यूचुअल फंड क्या करता है? हमारे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम करेगा ना, वो पब्लिक से स्कीम को जनरेट करके न्यू स्कीम को लाके वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में स्कीम को लोगों से पैसा लेता है। वो पैसा लेने के बाद उनका क्या रहता है? फंड मैनेजर रहता है। फंड मैनेजर हुई फंड मैनेजर, ये बंदा पूरा IIM से कब भी पढ़ाई करके आया है, वो पूरा टीम रखा है, सॉलिड प्रोसेस रखा है, वो लोगों का पैसा लेके रिसर्च करके इक्विटी में डालता है और रिटर्न जनरेशन करता है। इंडिया में कितना कंपनी मार्केट में लिस्टेड है?
इंडिया में कितना कंपनी मार्केट में जो भी कंपनी शेयर परचेज और बाय करते हैं ना, वो सारी 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने से तब जाकर सेल बाय कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? NSE BSE। कितना कंपनी लिस्टेड है? 6966 पकड़ लो 7000। अभी आईटीओ कैंपो को सब मिला के 7000 कंपनी है। आपको मालूम है जो फंड में जो लोग इक्विटी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कितना कंपनी में करते हैं? 7000 कंपनी से। थोड़ा वाइल्ड गेस करो कितना कंपनी में करते हैं? वाइल्ड गेस, ठीक है गलत अलग बात। 7000 से 200, बढ़िया बोले। और आप एनी गेस? 500। क्यों नहीं थे उधर? चलो जो भी है, वाइल्ड गेस इस ऑलमोस्ट आसपास में है, 400-500 कंपनी में करते हैं। आप बोलेंगे सर 7000 कंपनी ओनली 400-500 में करते हैं। अपना जो फिनांस में पढ़ाई करके आए ना, उनका कैलकुलेशन में बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट का लायक नहीं है, क्योंकि मैं पैसा लोगों का लगा इन्वेस्टमेंट करूँगा मार्केट में, मैं ठीक से करूँगा तो ठीक रिटर्न मिलेगा, तो कस्टमर मेरे को मेरा पास रहेगा, अदरवाइज चला जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। आज म्यूचुअल फंड का कंपनी नाम सुनिए, कौन सा म्यूचुअल फंड का कंपनी इंडिया में है? यूटीआई। क्या? पराग करेक्ट। हाँ, और फिर आपका सर एडलवाइज और क्या बात कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड सही है, कितना आज निकल रहा है आपको मालूम है? एसबीआई है भाई, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, यूटीआई है, निपॉन इंडिया है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। देयर आर 45। आज थोड़ा नोट करो, अंडरस्टैंड विच कंपनी। उधर एक साइट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, AMFIRP। वो साइट में जाकर पूरा म्यूचुअल फंड आपको पूरा तन करके आपको देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हैं और पढ़ाई करो, बहुत मजा लगेगा, बहुत बढ़िया लगे। तो 300-400 कंपनी में रिसर्च करके लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो इतना सारे म्यूचुअल फंड जो है उनका अंदर भी कंपटीशन है। अगर आप एसबीआई का फंड मैनेजर, आपको एचडीएफसी का, उन दोनों का अंदर भी कंपटीशन है, कोटक का अंदर कंपटीशन है, और जो नीचे जाएगा उनका उनसे लोग पैसा निकल के आपका पास डाल देंगे। तो एक इवन कंपटीशन है। सो म्यूचुअल फंड में इक्विटी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किसी लिए किसका पास होता है, कौन कर सकता है उसमें, वो भी जानकारी होना चाहिए। हर कोई आदमी बैडमिंटन खेल सकता है? 70 साल का आदमी को बोलोगे बैडमिंटन खेलने के लिए हाथ पाँव निकल जाए, क्योंकि एज डजंट अलाउ हिम टू प्ले दैट गेम। बट 31-22 साल और 45-40 साल के लोगों को बोलो बढ़िया से खेलेगा। तो इक्विटी इज मीन फॉर द यंगर जनरेशन और द पर्सन हु इज हैविंग द एपेटाइट टू टेक द रिस्क, ही विल गो फॉर इक्विटी। नाउ हु विल गो फॉर डेट? कंपैरेटिवली बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा बट थोड़ा कम रिस्क लेंगे, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए। देन कौन जाएगा हाइब्रिड, रिस्क भी थोड़ा लेने के लिए चाहता है और कंजर्वेटिव भी होना थोड़ा चाहता है, तो दोनों का मिला के एक म्यूचुअल फंड का बहुत सारी स्कीम्स है। उसके बाद सेक्टरल स्कीम है, सब थीमेटिक स्कीम है, क्लोज एंडेड स्कीम है, ओपन एंडेड स्कीम है, ईएलएस स्कीम है, बहुत सारी है। वो आपको पढ़ने से वो इतना ग्लॉसी लैंग्वेज नहीं है जो कि समझ नहीं पाओगे। ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड कैन इंटरप्रेट। तो म्यूचुअल फंड इज मेड फॉर दैट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये पूरा रामायण खत्म हो गया, किसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ? ये तो 5 asset क्लास में करेगा। और एक छोटा मोटा है, पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जिसका कि मिनिमम टिकट साइज है 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका मिनिमम टिकट साइज है 1 करोड़। दीज आर ऑलमोस्ट लाइक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, वो उसमें आते हैं, बट वो थोड़ा हाई प्रोफाइल का इन्वेस्टमेंट है, उसका चीज मैं नहीं बोलता हूँ। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी जो डिस्कशन करें ना, क्या क्या एसेट क्लास पहले बोला, एक किस्म का है बैंक और एनएससी और कॉर्पोरेट डेब्ट, ये सारी एक ही कैटेगरी, डेब्ट प्रोडक्ट और फिक्स्ड प्रोडक्ट बोले। सेकंड क्या बोले हम लोग? गोल्ड बोले। थर्ड क्या बोले? इंश्योरेंस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल बट यू शुड नो। एक इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट टूल के लिए होता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बट नॉट फॉर द वेल्थ क्रिएशन। फोर्थ में क्या है? शेयर, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी, और फिफ्थ में म्यूचुअल फंड। ये छोटे थोड़ी जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट, और जगह है लैंड एंड प्रॉपर्टी के लिए, वो बात अलग है। कैन आई हैव 5 लैंड्स? एक लैंड को सेल करने के बाद लड़की का शादी करेंगे?
और कुछ मेरा रिटायरमेंट सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होता है? इट्स नॉट इजी एसेट क्लास व्हिच कैन बी सोल्ड एंड बॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट टेक्स टाइम। अदरवाइज आपको जबरदस्त सेल करोगे स्ट्रेस सेल में आपको कम दाम में जाएगा। सो अगेन स्पीकिंग, व्हाट इज द रामायण बिहाइंड दिस डिस्कशन ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट? हम किस लिए करें? वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएशन किसके लिए होता है? किस रीजन के लिए होता है? फ्यूचर बेनिफिट्स, हाँ? फ्यूचर बेटर फ्यूचर मीन्स क्या है? बोलो बोलो। बेटर फ्यूचर मीन्स क्या है? ग्रोथ के लिए। Somebody has told something for better future, better lifestyle. तो ये क्या है सारी चीज? तो every investment is associated with certain goals. कुछ गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वेल्थ मैनेजमेंट किया जाता है. What are those goals in my country? In general. फाइनेंशियल गोल्स है। Yeah. फाइनेंशियल गोल्स, हाँ, what is those financial goals? गाड़ी, बंगला, घर, बीवी, मकान, बच्चा। गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चा, हाँ. बच्चा का रीजन क्या है? सर बच्चा के करते हैं बच्चे सर, अच्छा फ्यूचर मेरा आने वाला पुश्तैनी के लिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया. बच्चे के लिए क्या किसी लिए करते हैं? बच्चे का कौन सा चीज के लिए करते हैं? एजुकेशन. So in my country, children education is the most major reason for the investment. Then Status. children education आ सके तो status बढ़ जाएगा. Okay. Now what is the second? Children marriage. And third, नहीं हेल्थ मैंने रिस्क मैनेजमेंट बोल दिया. वो इन्वेस्टमेंट में हिसाब से नहीं है. वो है रिस्क मैनेजमेंट. उसको आप इन्वेस्टमेंट हिसाब से लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे. रिटायरमेंट प्लान. उसके बाद आप बोले इसको बीबी चाहिए हो तो लोग बोल रही है. और ये क्या बोलते हैं? हाँ, घर, प्रॉपर्टी चाहिए. प्रॉपर्टी के लिए और व्हीकल के लिए. उसके लिए क्या चाहिए? 5-7% का पैसा. सपोज घर बनाने के लिए 1 करोड़ लगेगा. एक फ्लैट परचेज करूंगा 1 करोड़. मेरे पास कितना पैसा होने चाहिए वो फ्लैट में परचेज कर सकता हूँ? कम से कम सर 5-6 करोड़। 1 करोड़ के लिए घर के लिए 5 करोड़. उसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए सर, जिसको 3-4 बार और खरीद सकते हैं। नहीं वो बात नहीं कर. मैं अपनी 1 लाख के लिए 1 करोड़ का घर परचेज करेगा, फ्लैट परचेज करेगा. उसमें क्या चाहिए? बाई व्हिच ही कैन बाय दिस थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मिनिमम पैसा 8-10 लाख रुपया होना चाहिए. देन उसका पास कितना रोजगार का बंधक रखने के सामान। ना आपका उतना रोजगार का प्रूफ देना पड़ेगा बैंक को. मीन्स उसका आपका इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल कर देना पड़ेगा. तब जाके बैंक श्योर होगा ये लड़का और ये आदमी इतना पैसा का रोजगार कर रहा है. ही इज कैपेबल ऑफ टेकिंग 90 लाख ऑफ लोन और 70 लाख ऑफ लोन और 60 लाख ऑफ लोन. तो उसी हिसाब से दे देगा. इसीलिए अब प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा वो बात नहीं. यू आर हैविंग योर कैपेसिटी, गिव 8-10 लाख रुपीज एंड शो कर दो अपना इनकम, आपको लोन मिल जाएगा. व्हीकल के लिए भी वही है. आज के दिन में मेरा इनकम भी सफिशिएंट है, फिर भी मैं घर के लिए लोन करता हूँ और व्हीकल के लिए लोन करता हूँ. कोई आप देखता है बैंक मेरा खाली टैक्स का रिटर्न 3 साल का देता है. वेदर आई एम कैपेबल ऑफ टेकिंग द लोन. कैपेबल ऑफ टेकिंग द लोन मींस रिपेइंग कैपेसिटी आदमी के पास है कि नहीं, वो दे के दे देगा. सो इसके लिए वेल्थ ज्यादा क्रिएशन करने का जरूरत नहीं. आपका पास टेम्पररी 8-10 लाख रुपया हो जाने से हो जाएगा. मैं बोलता हूँ कि 1 करोड़ का जो बाय करेगा और थोड़ा बड़ा अमाउंट का बाय करने के लिए उसी हिसाब से उनको इनकम हो. बट ये जो तीनों चीज के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है लोगों को वो ये तीनों को फाइनल करने के लिए. क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट डोंट टेक द पर्सन, यू टॉक द पर्सन फ्रॉम द एज ऑफ इन्वेस्टमेंट. जब से नौकरी स्टार्ट किया हो तब से छोटा छोटा अमाउंट करने से आपका ये सारी फ्यूचर गोल आप कवर कर पाओगे. आज मेरा पेरेंट्स मेरे को जो पढ़े किया, हम लोग का टाइम तो उतना कास्ट नहीं दिया. आई मे नॉट हैव स्पेंट मोर देन 2000 रुपीज इन माई कॉलेज करियर. सुदीप एंड माई सेल्फ हम लोग का उसी टाइम इतना पैसा जरूरत नहीं था. बट मेरा लड़की के लिए मैंने 30 लाख खर्चा किया है डेंटल के लिए 4 साल के लिए. तो ये 30 लाख मेरे कहाँ से आया? कहाँ से मैंने बंदोबस्त किया?
क्योंकि आई हैव टू मेंटेन माय लाइफस्टाइल. माय लाइफस्टाइल मीन्स माय चिल्ड्रन और माय लाइफस्टाइल. Okay? My dress is my lifestyle. My khana is my lifestyle. My vehicle is my lifestyle. These are the things which we all are meant for. आजकल सोसाइटी जब ग्रो कर गया, हम लोग को सबको चीज करना पड़ेगा. नहीं करोगे तो होगा ही नहीं. लाइफ स्टार्टर्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो ये सारी चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट के लिए क्या है, क्यों जरूरत है? हम लोग का मैक्सिमम पेरेंट्स का पास उस टाइम पेंशन होता करता था, जो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं नौकरी कर रहे थे. बट हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का रिटायरमेंट पर्पस नहीं है. एंड इन इंडिया मोस्ट ऑफ अस आर वेरी सेल्फ ड्रिवन पर्सन. बच्चा क्या करेगा, दैट आई एम नॉट थिंकिंग. मैं खुद के लिए क्या करूँगा, आफ्टर 60-65 जब मेरा रोजगार बंद हो जाएगा तो मैं आराम से लाइफ लीड करूँगा, उसके बारे में चिंता करता हूँ. तो उसके लिए मैं अभी से छोटा छोटा अमाउंट करने से बहुत बड़ा अमाउंट, आज का दिन में सपोज मैं रिटायर होगा, मेरे को इतना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन माई लाइफ स्टाइल एंड अदर्स लाइफ स्टाइल. सपोज मेरे को 3 करोड़ रुपया चाहिए, तो मैं 3 करोड़ करने के लिए मेरे पास कितना पैसा कब से, अगर मेरे को प्लान करने से तब जाके मैं उधर रीच कर सकता हूँ. बढ़िया से एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आप बोलिए आपका घर में कोई मेड सर्वेंट काम करता है, कोई घर का पास कोई टाली रिक्शा पुलर हो सकता है, वो लोग करोड़पति बन सकता है? बन सकते नहीं? बन सकते हैं. कैसे बनेगा बोलो? किस्मत. किस्मत का बात आप नहीं करते हैं, प्रेडिक्शन का बात नहीं करते हैं, सचमुच कैसे होता है? ये लोग कितना इनकम करते हैं? 6-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया तक करते हैं 2-3 घर में काम करके. वही मेरे साथ कौन सा एज में काम स्टार्ट करते हैं? 18 से 20. कितना साल काम करते हैं? 54-55 के बाद उनका फिजिकल कैपेसिटी काम हो जाता है. हालांकि ये लोग करते हैं, बट फिर भी पकड़ लो 25-30 साल काम करते हैं. 1,500 रुपया करके अगर रखेंगे एंड विदाउट इंक्रीमेंट फॉर द 30 years at the rate of 12% he or she can be a crorepati. 1,500 रुपया करके, rather the correct term is 1555. 1,555 करके अगर वो 35 साल किया, 18 साल से सपोज मान लो 20 साल से काम स्टार्ट किया, 55 years तक काम किया, 12% रिटर्न में उनका 1 करोड़ बनता है. So whether it is possible for all the people to become a wealthy person on the basis of his or her requirement is possible or not? It's completely possible. It is a simply mind game. लोग करते नहीं क्योंकि they do not get any kind of information. उसी तरह नहीं था. अभी विप्रो में सपोज मैंने my father is not alive right now. मैं अगर मैं पापा को पूछूंगा पापा क्यों नहीं 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए, टुडे we would have been around 700 करोड़ का क्यों जरूर we would have been 7 करोड़ तो फैमिली में ये wealthy person. 40 साल पहले करना था. हम मैं बोलता हूँ मैं पापा को पूछूं. What will be my father's ये आंसर? मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन? प्लीज डोंट गसिप भाई. एक्सक्यूज मी गसिप मत करो, थोड़ा सुनो. 2 मिनट के बाद पूरा गसिप करो. मैं my father will say, I will ask my father why you have not put 10,000, we would have become 700 crores wealthy person. What will be his answer? क्या आंसर होगा? सच में आंसर बोलो. नॉलेज नहीं था. नॉलेज नहीं था और रिस्क नहीं लेना था. रिस्क नॉलेज तो नहीं था, रिस्क का बात. हाँ रिस्क नहीं लेना था, पैसा बचता नहीं था. 10,000 तब का टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट होता है. उसी टाइम 10,000 बहुत बड़ा आदमी पैसा होने वाला का क्वेश्चन बहुत बड़ा है. और स्कैम से डर, स्कैम का डर नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था, एजुकेशन नहीं था. ऑल दिस थिंग्स आर एक्सेप्टेबल. If I do not do this thing right now, or if I have not done since last my 15 years, will my daughter will say, no Papa, whatever answer you are giving, and suppose मेरे पास surplus है, I am capable of investing, not that I am incapable, तो मेरा बच्चा भी क्वेश्चन नहीं करेगा. He will or she will have minimum understanding. पापा का क्षमता कितना था, तो अगर नहीं किया तो वो क्वेश्चन करेगा ना. So that is no more there. इसीलिए आज का जमाने में हम किसी को भी बोल सकते हैं. कोई भी लड़का अभी देखो अभी ग्रो आप में जाके खान से जाके करता है, गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, एडवाइस ले रहा है नहीं ले रहा है, बात अलग है. बट यस पीपल आर डूइंग. एंड व्हाई दिस सिस्टम इज अवेलेबल, जो बोलता है इंटरनेट सिस्टम इज वेरी easily available. I can connect the entire world sitting in Bhubaneswar or sitting in Raurkela, any part of the world. So these are the things which is available. तो मेरा बोलने का मतलब है वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में ये सारे गोल को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये 5 अस्त्र है, वेपन है.
वो 5 स्वीपर को कैसे यूज करोगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई बोलेगा मैं एफडी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में जाएगा, नो किस्मत काम नहीं करता सर। जब पार्ट नहीं पढ़ोगे किस्मत कुछ काम नहीं करेगी। सब क्वेश्चन में 0 आंसर आएगा। अगर पढ़े है ना किस्मत भूल जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब है एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड whoever is going to create wealth for the life existence, किस लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। लाइफ मेंटेनेंस मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। कोई अगर उसको थोड़ा ऊपर लेवल में लगे, कोई फ्लैट लेवल में लगा, कोई मीडियम लेवल में, उसके लिए वेल्थ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ whatever I wanted to say that I have just given you information in a very lucid language. I didn't go to standard deviation beta और alpha टेल करने के लिए नहीं बोला। स्टॉक सिलेक्शन करने के टाइम आई विल यूज रिस्क मैनेजमेंट टूल, फंडामेंटल टूल्स, बहुत सारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी होता है। वो सारी चीज तो आप पढ़ने से मिल जाएगा बहुत सारी किताबें। बट दीज आर द मेजर फैक्टर हाउ यू विल क्रिएट वेल्थ इन योर लाइफ। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट। एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू मेक क्वेश्चन? वेरी सिंपल क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी, आई विल ट्राई टू आंसर। Another 10-15 minutes to get any question. Sir, in terms of gold, sir, so can we invest in sovereign gold bonds? Yes, it is also very good one. But again, thing is that you have to lock your money for 5 years. But सबसे बड़ा before fully answering your question, by saying so, I do not say put the only in this asset class or put only in equity, put only in gold. No, you have to make it just like a थाली. थाली में खाने का टाइम क्या होता है? राइस रहता है, दाल रहता है, थोड़ा सब्जी रहता है, 3-4 किस्म का होने से then only you get the taste. ना the wealth management is exactly like that. You don't have to put the entire money in gold. You don't have to put the entire money in the equity. You don't have to put the entire money in the debt. Or you do not have to take 5 crores of insurance. वो देगा नहीं कंपनी आपको। आपका इनकम जितना है उसी लेवल का लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन करें। तो वेल्थ मैनेजमेंट का एक रूल जो रेगुलेशन होता है ना, सब एसेट क्लास में रखने के लिए है। गोल्ड बॉन्ड इज गुड वन बिकॉज गोल्ड बॉन्ड इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड। उसमें सबसे बढ़िया चीज इसलिए होता है, 2 चीज उसका नेगेटिव है, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में परचेस किया, सो यू फिजिकल गोल्ड का जो प्रॉब्लम है वो सारी को आप अवॉइड किए, और उसका गोल्ड का पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन इट मैच्योर्स इट गिव्स यू द उसी टाइम का रेट। सो इसी तरह गोल्ड बॉन्ड इज मच बेटर देन इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड। बट उसमें एक ही प्रॉब्लम दैट इज लॉक फॉर 5 इयर्स। अगर किसका जरूरत है पैसा, उससे अंदर वो पैसा नहीं ले सकता। प्रोबेबली दैट इज नॉट आल्सो लियन मार्किंग करके लोन भी नहीं ले सकता। मेरा देखना नॉलेज है। तो गोल्ड इज ए गुड इन्वेस्टमेंट, नॉट ये गोल्ड सोवरेन गोल्ड फंड इज ए गुड वन, नॉट बैड। बट दैट अगेन आपका टोटल सपोज 100 रुपया हुआ, 2-3 रुपया का होना चाहिए। नॉट द 100 रुपया से अगर 10 रुपया कर दिए देन दूसरा एसेट क्लास का ग्रोथ आप लूज करेंगे। इन्फ्लेशन कौन सा हिसाब का होता है, क्या क्या इन्फ्लेशन होता है? हाउसफुल इन्फ्लेशन और एक वेटेड प्राइस इन्फ्लेशन, और क्या क्या इन्फ्लेशन नाम सुने? हेल्थ इन्फ्लेशन नाम सुने हैं? वो किसको लेके होता है? हेल्थ इन्फ्लेशन और मेडिकल इन्फ्लेशन और फार्मा इन्फ्लेशन, जो भी उसको नाम दे सकता है। क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ ये मेडिकल जो चार्जेस है ना, इट हैज बीन इंक्रीजिंग वेरी सिग्निफिकेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसको एक इन्फ्लेशन जो होता है एजुकेशन इन्फ्लेशन। सपोज आज का दिन में मेरा डॉक्टर को अगर पढ़ाने के लिए और लड़का को पढ़ाने के लिए आय में 25 लाख खर्च हो रहा है, 10 साल का बाद कितना होगा? हाउ व्हाट इज द परसेंटेज गोइंग इन दिस कंट्री राइट नाउ? मोर देन 9-10%। इससे मेडिकल जो एक्सपेंडिचर होता है, अपोलो में जाते हो, कहाँ की हॉस्पिटल जाते हो, सब लास्ट ईयर और 2 साल पहले अगर 10 लाख खर्चा हो, 4 लाख 5 लाख खर्चा हो रहा था, अभी बढ़ के 6-7 लाख हो गया। दैट इज गोइंग वेरी हैवी, बहुत फास्ट बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन होता है, उसको थोड़ा देखो। These are all academic knowledge, not that you, whenever you talk to the people at any point of time, you will speak on your own and you are having, जो बोलते हैं ना, raw data with you. That is what I am saying. Different kind of inflation economy होता है, उसको थोड़ा पढ़ेगा। इसका कुछ just for knowledge purpose. And जो सारे interested हो, सारे लोग बोले होंगे, I will be coming after 3 o'clock. I will be putting some of my people in different part of Odisha. So those who will be interested to have one-to-one interview with me, then I will try to go for that selection. तो वेल्थ मैनेजमेंट का बारे में सम्यक नॉलेज है, कुछ एडिशन हुआ ना डिलीशन हुआ?
एडिशन हुआ है। जाके 2 आदमी को बोल सकता है ना वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, ये पॉइंट को नॉलेज करके बोलो। गोल्ड में मत करो बोल के मत बोलो, वो डर जाएगा। तो और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मत बोलो, वो भी बोलेगा ये कहाँ से सीख के आया है, डायरेक्टली बोल रहा है इक्विटी। म्यूचुअल फंड में भी करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या स्लोगन है मालूम है? म्यूचुअल फंड सही है नहीं, पहले गलत था, गलत नहीं। ये एक बढ़िया चीज है बोले म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री में। हाँ, आपका भाई मेरा भाई भी नहीं बोला था मैं आपको, मैं 1991 में करियर स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उसी टाइम म्यूचुअल फंड एक्ट नहीं था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मैंने नौकरी स्टार्ट किया था। 16 साल काम करने के बाद then in UTI then I went to private sector mutual fund for 3 years. One is your ICICI Group, another is L&T Group. L&T Group का जो म्यूचुअल फंड है अभी वो सेल हो गया है HSBC को। तो 21 साल उधर काम किया है, rather 21.5 years। और लास्ट 10 years से मैं अपना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाया। अब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी बना मीन्स क्या करोगे आप लोग? जैसे मैंने पढ़ाई किया, कुछ नॉलेज लेके लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या प्रोडक्ट से दूर होना चाहिए, ये सही समझाता हूँ। और मैं अपना नाम में, कंपनी का नाम में पैसा नहीं लेता हूँ। ये म्यूचुअल फंड में करना है, HDFC म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड का ये स्कीम नाम में डालो, वी आर द फैसिलिटेटर। बट स्टिल इन द इंडस्ट्री वी आर जस्ट ए केमिस्ट, नॉट ए डॉक्टर, बिकॉज लॉ डजंट अलाउ यू टू बिकम ए डॉक्टर। वो सही बाद में बोलेंगे। तो दिस आई मेड ए प्रोफेशन, नाउ आई कैन गिव 500 crores of asset, so that is who am I. Okay, now the thing is that what I want to communicate you, म्यूचुअल फंड का जो बारे में आप देख रहे हैं ना, पहले लोग म्यूचुअल फंड सेल नहीं कर रहे थे और लोग बाय भी नहीं कर रहे थे, इसलिए नीचे लगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, read the upper document very carefully, otherwise you will be unscared। अच्छा भाई, रोड में जाने के टाइम हम शायद ड्राइव स्लो गलत है, आपको बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी डिस्क्लेमर देने से ठीक है ना, गलत है, बट लोगों का साइकोलॉजी इतना भरता नहीं, सब में रिस्क है। और कोई किससे सुन लिया हो, कभी फील भी नहीं किए तो नहीं इधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो जो किया था ना, राम ने किया था, वो लॉस कर गया। वो बोला राम ने 500 लोग बोले राम ने किया था, लॉस कर गया, राम ने किया था। बट अल्टीमेटली हु इज द लूजर? हु डजंट डू? अगर मैं खुद ही नहीं करता हूँ तो वो लूजर में जो 10 साल के लिए हो गया, कोई भरपूर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट अगेन उसी टाइम म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ऐसा ऐड नहीं आना था। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड को हम लोग रिक्वेस्ट किए कि व्हाई यू आर सेइंग सो, लोग इंश्योरेंस करने के इंश्योरेंस से बेटर हो क्या मीनिंग है उसको सब किसी को पता नहीं, बट इंश्योरेंस किया, हाँ किया, क्यों किया? आके दे दिया, घर का पास का आदमी, वो मेरा रिलेशन है, बट उसमें 5% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं मिलता है। Nowadays there are certain product in insurance company, private हो, LIC ऑफ इंडिया का तो ऐसे प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसका परिमाण बोलने से फायदा भी नहीं हुआ, बिकॉज इट कैटर्स टू ए वेरी बिग कंट्री पॉपुलेशन। तो इसलिए इंश्योरेंस ठीक है। अगर बाई चांस कोई इंश्योरेंस LIC में नहीं किया होगा, समझ मान लो कि ये एरिया में क्या कांसवाल बोलते हैं, इतना कोई आके एडवाइस देने वाला नहीं है। कोई अगर इंश्योरेंस किया हो, गलत किया ना, ठीक किया, ठीक किया, किसने ठीक किया? एटलीस्ट तो उतना पैसा सेव कर दिया, चाहे वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाया नहीं कर पाया वो बात का बात है, बट पैसा तो सेव कर दिया। बैंक से तो 2% 3% अधिक मिला और नहीं मिला वो भी बात अलग है। सपोज मान लो बैंक का सब मिला, पर उसको तो रिस्क तो कुछ कवर भी करके रखा है। तो उस हिसाब से हर कोई एसेट क्लास का एक बोलते ना दाम होता है, क्वालिटी होता है। ऐसे नहीं कि म्यूचुअल फंड सही है और दूसरा गलत है, वो बात नहीं है। तो अगेन आई हैव टोल्ड यू, व्हेन वी इन्वेस्ट वी थिंक इट एज ए थाली। आई हैव टू हैव द टेस्ट ऑफ ऑल द फूड, देन ओनली इट गोज टू माय माउथ प्रॉपर्ली एंड आई कैन गेट ए सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट। वेल्थ मैनेजमेंट का फार्मूला भी वही है, हर किसी के लिए वो ऑप्शन वही है। हाँ, किसको इक्विटी जाएगा नहीं जाएगा डिपेंड्स अपॉन हिज रिस्क एपेटाइट। सपोज मैं और दोनों हम दोनों एक ही कैडर का है, उनका 1 लाख इनकम, मेरा भी 1 लाख इनकम। ही कैन गो टू, उनका एज 45 है, मेरा एज भी 45 है। ही कैन गो 60% टू इक्विटी, आई कैन गो बिकॉज आई डू हैव लॉट ऑफ लायबिलिटी फॉर द फैमिली। मेरा भाई बहन बच्चे लोगों को और फादर मदर को केयर लेना पड़ेगा, उनका इतना नहीं है। तो सेम कैटेगरी, सेम सैलरी, सेम होने के बाद भी वो ज़्यादा इक्विटी में जा सकता है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट करने का टर्म है लॉन्ग टर्म। ओके, तो बढ़िया हुआ। और नो क्वेश्चन
हो गया, मेरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, So, in terms of health management, real estate brings much more investment to it because it's a high-class sector and you have to invest more in order to get in the field of real estate. But apart from real estate, in stocks, mutual fund, gold, and so we will consider an equal investment in all the fields, or there is certain percentage to income more in stocks, apart of in प्लीज रिपीट द क्वेश्चन once again. जो भी मन में आता है और एक बार क्वेश्चन. question is apart from real estate brings more investment to enter. So we Real can't- estate much more investment we have. We should have much more capital to invest. बिगर मनी इज रिक्वायर्ड फॉर रियल एस्टेट पक्का. देन So initially at beginning we can't invest or enter in real estate market. So apart from that, in stock, mutual funds and gold, should we invest equally, or there is a certain percentage to invest, is 5% in stocks or 10% in mutual funds or something bigger in gold? very good question. Okay. In mutual fund, whenever you invest somewhere ना, different asset class, मैंने property भी एक asset class बोला, बाकी non financial इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी चीज है, FDs है, बॉन्ड है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, ये सारी जो चीज होता है ना, ये लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स रिस्क एपेटाइट, रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ. मेरे को रिक्वायरमेंट है, मेरा लड़की को शादी करना है 10 साल के बाद, मैं लैंड बाय कर दिया, चलेगा 10 साल के बाद, बट फिर भी तो रिस्क रहेगा एट द टाइम ऑफ लड़की मैरिज. मैं उसको सेल करने के लिए गया, वो सेल नहीं हुआ, वो एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया, लैंड में कुछ डिस्प्यूट हो गया, खत्म. Sir, तो परसेंटेज का हिसाब से जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एपेटाइट ऑफ द पर्सन. इट्स नॉट दैट देयर इज अ स्टम्पिंग रूल कि आपको 5% गोल्ड में रखना है, 10% इक्विटी में रखना है, 15% म्यूचुअल फंड में रखना है, 30% टैक्स में ये एफडी में रहता है, ऐसे कुछ रूल नहीं. नाउ द बीइंग ए वेल्थ मैनेजर यू शुड एनालाइज दिस पर्सन्स हैज, इनका क्या क्या गोल है. चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल, अभी उनका 45 एजुकेशन का गोल खत्म हो चुका है एंड रेगुलर अभी हायर एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है और मैरिज का है, तो उसी टाइम उनका सॉल्यूशन अलग है. वही आदमी अगर 30 साल का है, उसी किस्म का इनकम ग्रुप वाला, उनके लिए डिफरेंट मेडिसिन जाएगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन्स रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड विद दिस 3 गोल. और अभी ये दोनों गोल का हम बोलते नहीं, क्योंकि मैंने बोला ये दोनों को एक्वायर करने के लिए इतना बहुत बड़ा जरूरत नहीं. अपना कैपेबल है इनकम तब करो, नहीं है तो उतना लोन नहीं मिलेगा, उतना तक नहीं जा सकता. और आजकल कुछ बोलते हैं ट्रैवल के लिए, कुछ ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंडिचर करने के लिए गोल करो, वो सारी मैंने डिस्कशन किया, बिकॉज़ दीस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन्स रिक्वायरमेंट एंड रिस्क प्रोफाइल. नो अदर क्वेश्चन? तो इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोला आपको, क्या नोट करने के लिए? डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज देयर इन द कंट्री. ओके, try to go to the Google, find out what are the different inflation in my country and what is its percentage right now. CPI, WPI सबको मालूम है. एजुकेशन इन्फ्लेशन क्या है, फार्मा इन्फ्लेशन क्या है, मेडिकल एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ा है, ये सारी थोड़ा नोट करो. डिफरेंट सेक्टर का भी इन्फ्लेशन है, वो देखो, आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा. थैंक यू. सो नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन. I hope you must have learned a lot of things, practical example, practical suggestions which really enlightened your ideas to grow in this market. And see, without the sir has told, finance is the bloodstream of any economy. So it is very much required. It is not only important that only finance student will learn all these things. Everyone, including me also, I was interested to sit in this class, but due to some other engagement I could not came. Thank you so much for out of your busy schedule you came and given very good ideas about and motivate our students. Thank you so much. Now I would request Manpreet to come and a token of love from IFF family. So once again, my request to all of you, whatever you have learned, try to increase in years to come. आप ये फील्ड में रहो नहीं रहो अलग बात है, पूरा अलग बात है.
बट ये इतना काम में आएगा बीइंग ए फिनांस पर्सन इफ यू स्पीड मान देगी ना इट गोज वेरी डीपली टू योर फैमिली मेंबर्स। दूसरा वो फिनांस नहीं पढ़े तो उनका बात नहीं सुनेंगे लोग, तो उसको एजुकेट करो, 5 पर्सनल बेनिफिट पे होगी। अगर सब बहुत मान लो मैंने आपको बोला कि एटीएम नहीं है, शेयर में परचेज करोगे नहीं करोगे? सब हर आज से लेके 1 साल के लिए घर का मेंबर जिसका पास बचा वाला 2 LND परचेज करने के लिए, जिसका उनका जितना कैपेसिटी LND खाली परचेज करने के लिए, काम खत्म, कुछ जरूरत नहीं। कुछ फंडामेंटल स्टडी, कुछ टेक्निकल स्टडी करने की जरूरत है। अगर LND नहीं चलेगा तो कंट्री नहीं चलेगी। 2 SBI शेयर परचेज करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, नो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। 10 साल के बाद लॉन्ग टर्म में करोगे जबरदस्त रिटर्न है, फाड़ के रिटर्न देगा। बट हम लोग किसी ने नहीं बोलते स्पेसिफिक शेयर के लिए, बिकॉज गलत ड्राइव में पर गिर जाएगा तो फिर ऐसे चोट लगेगा, दूसरा टाइम वो सोचेगा नहीं कभी इन्वेस्टमेंट करके। सो दैट इज व्हाई म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू।